वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, प्रणाम आप सभी को। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 और एक्सरसाइज 2.4 की बात करेंगे और इस वीडियो को पूरा करने के बाद हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे। ओके, सो एक्सरसाइज 2.3 में हमें वेट का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है। ओके, 2 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा, 4 आप सॉल्व करोगे। टोटल 6 क्वेश्चन, देयर आर ओनली 6 क्वेश्चंस रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेट्स। So 2 I will solve here, the question number 1 and the question number 6. Question number 2, 3, 4, 5 you have to solve on your own. Okay, अपने से आपको solve करना है और further in the live classes we will discuss about that questions also. Okay, so what is the first question here? The first question is 21,075 milligram by 15. So you have to just organize the numbers. 21,075. You have to multiply it by 15. 5 5s are 25. 5 7s are 35. 35 plus 2. 37. 5 zeros are 0 plus 3. 3. 5 1s are 5 and 5 2s are just 10. Now we will put a 0 here. 1 5s are 5. 1 7s are 7. 1 zeros are 0. 1 1s are 1 and 1 2s are 2. Now we have to add 5 plus 0 5. 7 plus 5 12. 3 plus 7 10 10 and 1 carry 11. 1 carry 5 plus 1 6. 0 plus 1 1. 2 plus 1 it will be 3 here. So how many milligrams here? We can write that answer 33,60,125 milligram. This is our answer. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको होल नंबर दिया है तो मल्टीप्लिकेशन और आसान हो जाता है हमारे लिए। नाउ द 6th नंबर क्वेश्चन। ओके, 6th नंबर क्वेश्चन इज 22.926 tons. Okay, so you have to write the unit also here as I had written. Okay, so you have to organize the number first. 22.926. Okay, tons. Here it's tons. 42. By 42 you have to multiply this number. Fine. 2 6s are 12. 2 2s are 4 1 5. 2 9s are 18. 2 2s are 4 1 5. 2 2s are 4. Okay, now we have to put 0 here or 4 6s are 24. 4 2s are 8 and 2 10. 4 9s are 36 and 1 37. 4 2s are 8 and 3 11 and 4 2s are 8 and 1 it's 9. So we have to add this 2. 5 plus 4 9. 8 plus 0 you have to put point here. Okay, 8 plus 5 plus 4 9. 8 plus 0 0. Here will be our point before 3 numbers from the left से 3 नंबर क्या क्या हमारा पॉइंट रहेगा यहाँ पर। 5 plus 7 it will be 12. Okay, 1 will be carry here. 4 plus 1 5. 5 plus 1 it will be 6 and here यहाँ पर 0 होगा और 0 plus 9 will be 9. The answer will be 962.892 tons. तो आप अपना आंसर यहाँ पर लिख सकते हो। ओके, कैसे लिखोगे? 962.892 tons. 962.892 tons. Okay, तो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अ बिग डील फॉर अस बिकॉज हमने लेंथ में भी मल्टीप्लिकेशन किया था, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मल्टीप्लिकेशन में होगा।
2 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए हैं मल्टीप्लिकेशन से. 4 questions will be your homework, which will be the question number 2, question number 3, question number 4 and question number 5. These both also you have to solve in your fair notebook. So students, now the second number question of the exercise 2.3, which is division. Divide the following. So there are also 6 questions and I had taken question number 7 and question number 12. Question number 8, 9, 10, 11. These 4 division questions will be homework for you. You have to do with your own self. Okay. So the first question here is question number 7. Here we are dividing 1,97,637 by 11. Okay. So first of all we have to try 11 ones are 11. What will be left here? 8. 7 will be here. Okay. 11 sevens are 77. What will left here? 10 students. 7 0. 8 from 7 from 8 will be 1. So 10 will be left. We will down this 6 here. 106. Interesting. 11 9s are 90. 9 minus what? 16. We have to take 1 from here. 9 from 16 will be 7 and here will be 0. Okay. Now what we have to down here? 3, 73, 6 the 60, 6 minus. Okay students, 1 we will take, 13 from 6, 7 will be here. Okay, and the 7 will be down here, 77, 7s are 77 and the division is over here students. Division pura ho gaya, remainder 0 aa gaya. What is our answer? Our answer will be in milligram because this is the 7th number question. Okay, so our answer will be 17,967 milligram. You have to write this. Last, you have to write the answer in this form. 17,967 milligram. Okay, this was the very easy division, I think. Now, the division based on decimal. Okay, decimal में division कैसे करेंगे वो देख लेते हैं हम लोग. 90 ones are 19. Okay. What will be the answer here? We have to take 1 from this side. Okay, the 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? Will be 6 and here will be 0. What we have down here? Will this 6. 19 3s are 57. Okay, 19 3s are 57 minus what will be here now? We have to take 10, we have to borrow 1 from the 6, 5 minus 5 will be 0 here and from 7 from 16 will be 9 here and what we have to down here the 2, it will be 92. Okay, so 94s will be 76. What will be? 76. Now we have to take 1 from here. तो 12 से बेटा 12 से 6 जाएगा, 6 बचेगा और 8 से 7 1 16. नाउ स्टूडेंट्स देखिए सारा का सारा होल नंबर पूरा हो गया, अब पॉइंट आ गया तो वी हैव टू पुट दिस पॉइंट हियर और उसके बाद ही जाकर के ये 1 हम यहाँ पर नीचे ले सकते हैं. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू? 19 8s what? 19 8s it will be here 152. 19 8s will be 152. Okay, minus what will be the answer? We have to borrow 1 here 0 here 0 because 5 minus 5 0. 11 minus 2 what will be there? There will be 9. Okay, and this 5 will come down here 95 and 19 5s are 95 minus the remainder is 0. The division is over and what's our answer? Our answer will be in tons students. Our answer will be in tons. The answer will be 134.85 tons. Okay, because this is in tons, the given in question. This sum given in question in tons. The unit of this number is tons. Okay, that's why. So these 2 divisions are over now. These 2 divisions are completely over now.
So division and multiplication is over. Okay, so you have 8 questions to do with your own. Now we are going to jump into the next exercise, which is totally based on the word problems. Okay, let's do. So students, the first word problem is there, the first question of exercise 2.4. The first question is, the boy weighs 43.625 ग्राम. ये एक लड़का का भार दिया हुआ है, लड़का का वेट इतना दिया हुआ है. दूसरे किसी लड़के का, अनदर बॉय, एक और लड़का है जिसका वेट इतना है. तो एक वेट को बेटा देखिए डेसिमल में दे दिया है 43.625 और दूसरे वेट को 42 kg और 372 ग्राम अलग अलग करके लिख दिया. इसको भी हमें डेसिमल में लिखना पड़ेगा. ओके, सो ये दोनों के वेट है और पूछता है कि व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ द टू बॉयज. दोनों बॉयज का टोटल वेट क्या, इस तरीके का क्वेश्चन है. तो बेटा कोई भी पढ़ के समझ जाएगा अगर टोटल नाम का शब्द आ गया है मींस देयर इज एडिशन. If the question is asking us that what is the total weight of the two boys, simply we have to add the weight of the first boy to the weight of the second boy. Okay, so we will write first what is the weight of the first boy. Weight of the first boy is 43.625 kg. Okay, now weight of the second boy. Weight of the second boy will be 42.372. बेटा केजी और ग्राम के बीच में बस पॉइंट ही लगाना है, टोटल केजी में हो जाएगा. हमने ये बात बताया था डेसिमल में चेंज करने के लिए. ये हो जाएगा बेटा 42 पॉइंट, बिकॉज जो केजी होता है वो होल पार्ट में होता है और जो ग्राम होता है वो डेसिमल पार्ट में चला जाता है. तो 42.372 हम इसको लिख सकते हैं 42.372 kg. ओके, पूरा केजी में हो गया. ये दोनों को हम सिंपली ऐड कर देंगे ना, सिंपली इफ आई ऐड दिस बोथ तो हमें मिल जाएगा टोटल वेट ऑफ द टू बॉयज. हमें क्या मिल जाएगा बेटा, टोटल वेट ऑफ द टू बॉयज. दोनों लड़कों का टोटल वेट हमें मिल जाएगा 5 + 2 will be 7, 2 + 7 will be 9, 6 + 3 will be 9. पॉइंट जिस जगह पे उसी जगह पे. 3 + 2 will be 5 and 4 + 4 will be 8. The total weight is 85.997 kg. ये हमारा बेटा आंसर. ओके, इस तरीके से एक वर्ड प्रॉब्लम को हम सेंटेंस और स्टेटमेंट के साथ बना सकते हैं. ओके, सो ये फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया है. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अवर सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम. ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ इज द सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम ऑफ योर एक्सरसाइज 2.4 कि एक मेडिसिन टैबलेट है जिसका वेट जो है वो 125 मिलीग्राम है. अब उस पैकेट में टोटल 487 ऐसे टैबलेट्स हैं. एक टैबलेट का वेट 125 ग्राम और 487 टैबलेट्स उस पूरे पैकेट में है. तो व्हाट इज द वेट ऑफ दिस पैकेट इन ग्राम. फिर आपको मिलीग्राम में नहीं निकालना है, आपको फिर इसमें दो काम करने. एक तो बहुत बड़ा मल्टीप्लीकेशन करना है 3 डिजिट का, और उसके बाद जो आंसर आएगा वो मिलीग्राम में आने वाला है. उसको फिर उसके यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा मिलीग्राम से ग्राम में, बिकॉज क्वेश्चन बोलता है कि मुझे ग्राम में आंसर चाहिए. तो हमें कन्वर्जन भी करना पड़ेगा. जिसको 2.1 एक्सरसाइज अच्छे से आया होगा ना वो कर सकता है ये काम. अब हम लोग बात करेंगे कि वेट ऑफ वन टैबलेट. एक टैबलेट का वेट बेटा कितना है 125 मिलीग्राम है. 125 मिलीग्राम. ओके,
सो अब हमें कितने टैबलेट्स है टोटल, नंबर ऑफ टैबलेट्स इन द पैकेट, नंबर ऑफ टैबलेट्स इन अ पैकेट, एक पैकेट में कितने टैबलेट्स हैं, 487 टैबलेट्स हैं। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि ये एक टैबलेट का वेट है और हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना वेट ऑफ पैकेट, पूरा पैकेट का वेट निकालना जिसमें 487 है। तो वेट ऑफ अ पैकेट का वेट निकालने के लिए हमें पूरा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा बड़ा होगा इस बार। ओके, सो हम देखेंगे 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 17, 7 1 जा 7, 7 प्लस 1 8। ये तो हो गया एक। ये कैरीज हम हटा देते ताकि अगले बार के लिए हमें जगह मिल जाए। यहाँ पर बेटा हम 0 डाल देंगे। नाउ 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 प्लस 4 20, 8 1 जा 8 प्लस 2 10। ओके, सो फिर से हम ये हटा देते हैं, हमारा 8 से हो गया ना बेटा। हम 2 बार 0 लगा देंगे यहाँ पर और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 4 1 जा 4 प्लस 1 5। अब इसको हमें ऐड कर देना है। ओके, तो बेटा 5 प्लस 0 प्लस 0 इट विल बी 5 हियर, 7 8 0 and 6। what will be the answer in milligram? it's in milligram। आपका जो आंसर आया बेटा अभी वो आ गया 60,875 मिलीग्राम। अब आपको इसको चेंज करना है ग्राम में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आप इसको ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, मिलीग्राम टू ग्राम 3 जंप आएंगे। मिलीग्राम के बाद कौन आएगा, एक सेंटीग्राम, डेसीग्राम, फिर ग्राम। तो 1000 से डिवाइड करना होगा हमें बेटा इसको। तो जब हम इसको क्या करेंगे 60875 बाय 1000 कर देंगे बेटा, कितना 0 3 के आगे पॉइंट लगा दो तो कितना हो जाएगा 60.875 ग्राम। ये हमारा लास्ट आंसर होगा। पहले हमने मल्टीप्लाई किया, बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन आया, मल्टीप्लिकेशन मिलीग्राम में आएगा बेटा, मिलीग्राम में आया, फिर इसी मिलीग्राम वाले को हमने ग्राम में चेंज कर दिया और ये हमारा फाइनल आंसर हुआ 60.875 ग्राम। ओके, ये था हमारा सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम। नाउ वी विल गोइंग टू एक्सप्लेन द थर्ड वर्ड प्रॉब्लम। So students, in this question, this is the third number word problem of the exercise 2.4। 3 shipment container, बहुत बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जहां पर शिप्स जाती है बाहर देशों में। ओके, तो बहुत बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, उसमें से ही कोई 3 कंटेनर को इस क्वेश्चन में लिया गया है। 3 शिपमेंट कंटेनर्स, जिसमें से एक का वेट 327.51 क्विंटल, दूसरा का 34.295 क्विंटल और तीसरा का 34.296 क्विंटल है। ओके, सो ये तीनों का टोटल वेट कितना होगा। मैंने बोला जब भी टोटल का बात करें ना स्टूडेंट्स, तो हमें सिंपली ऐड करना है चीजों को। तो हमें स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे कि क्या लिखेंगे हम, वेट ऑफ फर्स्ट कंटेनर, पहला कंटेनर का वेट कितना होगा 327.51 क्विंटल। ओके, अब हम लिखेंगे वेट ऑफ सेकेंड कंटेनर इज इक्वल टू 34.295। ओके,
बेटा हम यहाँ 0 लिख सकते हैं लास्ट में, बिकॉज हमारे डेसिमल पार्ट में 3 नंबर्स है ना, और फर्स्ट डेसिमल में सिर्फ 2 नंबर्स, तो हम लास्ट में 0 लिख करके क्या कर सकते हैं, इसको लाइक डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। तो ये बात थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। ओके, नाउ तो हम लोग लिखेंगे वेट ऑफ थर्ड कंटेनर। थर्ड कंटेनर का वेट लिखेंगे, कितना हो जाएगा बेटा, 34.296। 34.296 क्विंटल में है सभी को ऐड करेंगे तो जाकर के हमें आंसर मिलेगा द टोटल वेट ऑफ द 3 कंटेनर। तो क्या लिखेंगे हम लोग, द टोटल वेट ऑफ द 3 कंटेनर्स। ओके, इसका टोटल वेट हमारा आएगा। अब हम ऐड करेंगे। ओके, सो 5 plus 6 will be 11, 1 will be carry, 9 plus 9 18, 1 19, 1 20, 2 will be carry, 2 plus 5 7 plus 2 9 plus 2 11, point 1 will be carry, 4 plus 4 8, 8 plus 7 15, 15 plus 1 16, 1 will be carry, 3 plus 3 6, 6 plus 2 8, 8 plus 1 will be 9 and 3 will be here। तो टोटल आंसर हमारा क्विंटल में आ रहा है 396.101 क्विंटल। ओके, तो टोटल आंसर हमारा क्या आ गया, वो हम लास्ट में ऐसे आंसर करके ऐसा लिख भी सकते हैं, 396.101 क्विंटल। ये हमारा लास्ट आंसर। इस तरीके से थर्ड नंबर वर्ड प्रॉब्लम स्टूडेंट्स हम बना सकते हैं। ओके, नाउ हम फोर्थ नंबर वर्ड प्रॉब्लम में जाने वाले हैं। बेटा क्वेश्चन आप अपने बुक में देखिए बहुत अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है कि एक ड्रम है। ड्रम का मतलब आप समझ लीजिए एक बाल्टी है, ठीक है, एक कंटेनर है जिसमें पहले से 2155.72 kg प्लास्टर ऑफ पेरिस था। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है बेटा, हम दीवार पे लगाते व्हाइट रंग का, दीवार को स्मूथ रखने के लिए वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। वो एक पाउडर होता है पहले तो, फिर उसको प्रोसेस करके लगाया जाता है दीवार में। ओके, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस 2155.72 kg पहले से था। अब उसमें से आउट ऑफ दिस, इसमें से 1626.95 kg को खत्म कर दिया गया, लगा दिया गया। तो अब क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट इज द वेट ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस लेफ्ट इन द ड्रम। अब कितना प्लास्टर ऑफ पेरिस ड्रम में बचा हुआ होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, जब लेफ्ट बोले कि भाई कितना बचा हुआ है, व्हाट द अमाउंट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस लेफ्ट इन द ड्रम, तो हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन फर्स्ट। ओके, सो हम अब क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि वेट ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस इन द ड्रम। वेट ऑफ, हम पीओपी लिख सकते हैं, पीओपी इन द ड्रम कितना था, 2155.72। ओके, नाउ अमाउंट या फिर वेट ऑफ पीओपी कंज्यूम्ड, वेट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस कंज्यूम्ड मतलब जिसको यूज कर लिया गया, वो था 16,162.95 kg। केजी में है दोनों। अब क्वेश्चन बेटा ऐसा है कि हमें माइनस करना पड़ेगा, मैंने पहले ही आपको क्वेश्चन समझा दिया। और हमारा आंसर स्टेटमेंट क्या होगा कि द वेट ऑफ पीओपी लेफ्ट इन द ड्रम, वेट ऑफ पीओपी लेफ्ट इन द ड्रम will be equal to, okay, so we are going to subtract now first of all 5 will not subtract from 2, so we have to carry 1, it will be 12 and here it will be 6,
12 से beta 5, 12 minus 5 will be 7 here. We have to write kg also. Now from 6 we can't, 9 from 6 will not be subtracted, so we have to borrow 1 here. 16 से 9 जाएगा बेटा, कितना बचेगा 7. पॉइंट जिस जगह पे है उसी जगह पे लगा देंगे. 4 minus 6 is not possible, so here we also borrow 1 from 5 and 5 will become 4. 14 minus 6 here will be 8. 4 minus 2 will be 2. Now here we have to borrow 11 minus 6 will be 5 and 1 minus 1 will be 0. So what is the amount of POP left in the drum? So the amount of POP which is left in the drum is 528.77 kg. 528.77 kg बेटा, इतना POP जो है वो बचा. जब लेफ्ट का क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से माइनस करना पड़ेगा. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू अवर लास्ट वर्ड प्रॉब्लम विच इज क्वेश्चन नंबर 5. Now students, the question number 5th. The question number 5th explains that there are 18 bags which have equal weight. Means 18 total 18 bags है और सारे बैग का वेट जो है ना वो इक्वली, टोटल 18 बैग्स का वेट जो है वो 985.68 kg है. ओके, तो अब मैंने आपको बताया था जब ज्यादा का पूछे, ज्यादा का बता दे हमें, 18 मतलब बहुत ज्यादा बैग्स का हमें वेट बता दिया. पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज द वेट ऑफ वन बैग. हमें बता दिया है कि 18 बैग्स का टोटल वेट इतना है और पूछता है 1 का. तो जब ज्यादा का बता के 1 का पूछे तो डिवाइड, 1 का बता के ज्यादा का पूछे तो मल्टीप्लाई. तो हियर इन दिस केस वी हैव टू डिवाइड. ओके, we have to divide 985.68 from 18, so we will get our answer in this question. Okay, so we are going to start. Weight of 18 bags will be 985.68 kg. Okay, so we have to simply here divide 985.68 by 18. Okay, थोड़ा और 985.68 we have to divide by 18. Okay, first of all 18 5s are 90. Okay, we will get here 8 5 here. Okay students, now 18 4s are, what will be there? 18 4s are, 18 4s are will be 72. Okay, so we will get here 5 3 13. Okay, अब बेटा देखिए सारा होल नंबर पूरा हो गया हमारा. Here all the whole numbers are gone. Now after decimal, if we have to put down this number which is a part of the decimal, we have to put point here, so we can put 6 here. So here will be 136. Okay, so what we can do here, 18 sevens are, what will be 18 sevens are students? 18 sevens are will be 126. What we will get here? 6 minus 6 0 and 3 minus 2 1. Here will be 10. Okay, now this 8 will be here and 86 108 and the division is over. Division is over. Okay, so what will be the answer? So we can write the statement here. Key weight of one bag will be
54.76 kg। ये बेटा हमारा आंसर होगा, ये आएगा kg। तो weight of 18 bags will be 985.68 and the answer of one bag after division it will 54.76 kg. It is the last question and only one question, high order thinking, 6th number will be your homework. Okay, so thank you so much for joining this session. Thank you very much.